Pozdrav, prijatelji ribolovci i dobrodošli na moj kanal. Vaš omiljeni ribolovni guru je ponovno tu s vama, spreman podijeliti najsvježije informacije i prognoze za nadolazeći ribolovni dan. Danas ćemo secirati 17. listopad 2025. godine. Pitate se što nam taj datum sprema? E pa, iako jesen kuca na vrata s hladnijim jutrima, ovaj dan ima svoje posebnosti koje ćemo iskoristiti do maksimuma. Neće to biti dan za rekorde bez truda, ali s pravom strategijom mogli biste se iznenaditi. Pripremite se za detaljnu analizu i praktične savjete koji će vam pomoći da ulovite ribu života. Za morske ribolovce, orada i lubin, orada, komarča. Zbog stabilnijeg vremena i još uvijek prihvatljive temperature mora, orade će se zadržavati u blizini obale, posebno na dubinama od 3 do 10 metara, blizu brakova, kamenitih dna i pješčanih sprudova gdje pronalaze školjke i rakove. Rani jutarnji sati i kasno poslije podne bit će ključni, kada se riba aktivnije hrani. Moja mala tajna. Koristite plitke uvale i plaže s mješovitim dnom, ali s oprezom, jer su orade izuzetno sumnjičave. Na što loviti? Preporučujem surf casting ili klasični paternoster sistem s 1 do 2 predveza. Kao mamac, nezaobilazni su svježi školjkaši, poput dagnji, prstaca ili kunjaka, ali i komadići morskih crva poput bibija ili velikih crva. Udica treba biti oštra i ne prevelika. Važno je dobro zabacivanje i izuzetno strpljenje. Orade su majstorice u krađi mamca. Lubin, brancin. Lubini će biti aktivni, posebno na ušću rijeka, u lukama, u blizini brakova i kamenitih obala, kao i oko ribogojilišta. Tražit će sitnu ribu poput gavuna ili ciplića, koja se zadržava u toplijim slojevima vode ili u strujama. Najbolje ih je tražiti u sumrak i zoru, ali i tijekom oblačnijih perioda dana, kada su manje vidljivi plijenu. Tražite ih na dubinama od 1 do 4 metra, na mjestima gdje se spaja slana i slatka voda. Butkikir musi. Temperatura vode. Temperatura Jadranskog mora kreće se oko 18 do 20 stupnjeva Celzijusa, dok će u slatkovodnim jezerima i rijekama biti nešto niža, vjerojatno u rasponu od 12 do 16 stupnjeva Celzijusa. Ove temperature su idealne za jesenji žder za mnoge vrste. Utjecaj na ribu. Umjerena temperatura vode pogoduje većini vrsta, jer ne doživljavaju toplinski stres niti ekstremnu hladnoću. Riba je sada puna energije i aktivno traži hranu kako bi se pripremila za zimsko razdoblje. Posebno obratite pažnju na prijelaze iz toplijih, plićih zona u dublje, hladnije, gdje se riba često zadržava. U rijeci toplija voda oko ušća pritoka ili mirnijih zavoja može biti pravi magnet. Faza mjeseca. Za 17. listopad imamo opadajući mjesec blizu mlađaka. To znači da je mjesec sve manje osvjetljen, a do mlađaka nam preostaje još 4 dana. Po mnogim ribičkim vjerovanjima, ova faza obično donosi umjerenu aktivnost ribe. Mnogi iskusni ribolovci smatraju da je period oko mlađaka, kada je mjesečina najmanja, dobar za ribolov, jer riba postaje manje oprezna zbog smanjenog mjesečevog sjaja, posebno tijekom noćnog ribolova. To je vrijeme kada se riba može usuditi prići bliže obali i biti manje sumnjičava prema mamcima. Opća aktivnost ribe. Općenito, aktivnost ribe bit će srednja do dobra. Jesen je, kao što znamo, vrijeme intenzivnog hranjenja za mnoge vrste, a stabilni vremenski uvjeti s umjerenim temperaturama i tlakom pogoduju tome. Očekujte aktivnost tijekom cijelog dana s potencijalnim vrhuncima u jutarnjim satima nakon što se magla digne i tijekom poslijepodneva, prije zalaska sunca. Ribe poput orade, lubina, šarana i smuđa bit će posebno zanimljive mete, ali ne isključujem ni kapitalce poput soma ili gofa ako se odlučite za dubinski ribolov iz broda. Ocjena klijenta. Osobno, rekao bih da nas čeka voz srednji do dobar, ali izbirljiv klijent. Zašto? Bhagwan Kuber. देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर भी धनतेरस पर पूजे जाते हैं। उनकी पूजा से धन की स्थिरता और वृद्धि होती है। लोग आर्थिक समृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। यम दीपम। एक और महत्वपूर्ण परंपरा यम दीपम है, जिसमें मृत्यु के देवता यमराज को एक दीपक अर्पित किया जाता है
ताकि परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। यह एक अद्भुत मिश्रण है, जहां एक ओर हम धन और स्वास्थ्य का आह्वान करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम मृत्यु के भय से मुक्ति भी चाहते हैं। संभावित पैगानिक जड़ें। इस त्योहार की जड़ें प्राचीन काल के कृषि समाजों में भी देखी जा सकती हैं। फसल कटाई के बाद नए धन और अन्न के आगमन का जश्न मनाना, सर्दियों से पहले घरों को तैयार करना और बुराइयों से बचाव करना, ये सभी पैगानिक अनुष्ठानों से मेल खाते हैं। यह मानव की मूलभूत इच्छाओं, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा का एक कालातीत प्रतिबिंब है। धनतेरस के पीछे दो प्रमुख और रोमांचक कथाएं हैं जो इस दिन के महत्व को गहराई से समझाती है। यह भगवान धन्वंतरि का अमृत कलश। समुद्र मंथन की वह अद्भुत कथा तो आपने सुनी ही होगी, जब देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे ताकि अमृत प्राप्त कर सकें। मंथन के दौरान कई रत्नों और दिव्य वस्तुओं के साथ साथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को एक चमत्कारी पुरुष समुद्र से प्रकट हुए। उनके हाथों में एक अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान धन्वंतरि थे, जो आयुर्वेद के ज्ञान और जीवनदान की शक्ति लेकर आए थे। उनके प्रकट होने से सृष्टि में स्वास्थ्य और उपचार की एक नई आशा का संचार हुआ। इसलिए धनतेरस पर धन्वंतरि जी की पूजा हमें न केवल बीमारियों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और मन है। सती, राजा हिमा के पुत्र की कथा और यम दीपम का रहस्य। स्वच्छ जल निकाय देखना। बहता हुआ स्वच्छ पानी, नदी, तालाब या झरने को देखना शुद्धि, नए आर्थिक अवसरों और जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। 5. झाड़ू देखना। झाड़ू का सपना गरीबी को दूर करने, घर से नकारात्मकता को हटाने और नए सिरे से शुरुआत करने का प्रतीक है। यह आर्थिक बाधाओं के हटने का संकेत है। 6. गंदा या कीचड़ भरा पानी देखना। यह सपना आर्थिक परेशानियों, कर्जों या किसी प्रकार की वित्तीय हानि का संकेत हो सकता है। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 7. टूटे हुए बर्तन देखना। यदि आप सपने में टूटे हुए बर्तन देखते हैं तो यह धन के नुकसान या गरीबी का प्रतीक है। 8. हरी भरी फसलें या फल देखना। यह सपना प्रचुरता, अच्छी कमाई और व्यापार में सफलता का संकेत है। इस दिन जन्मे लोग। 17 अक्टूबर 2025 को जन्मे लोग अद्वितीय गुणों और भाग्य के साथ आते हैं। ये लोग भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद से युक्त होते हैं। चरित्र। ये स्वभाव से बहुत बुद्धिमान, व्यवहारिक और मेहनती होते हैं। इनके अंदर धन कमाने और उसे सही ढंग से प्रबंधित करने की नैसर्गिक क्षमता होती है। ये दूरदर्शी होते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित रहते हैं। इनमें नेतृत्व के गुण होते हैं और ये अक्सर अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पदों पर पहुंचते हैं। स्वास्थ्य। धन्वंतरि जी के आशीर्वाद से ये लोग आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं और अक्सर आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि रखते हैं। भाग्य। इनका भाग्य धन और समृद्धि के मामले में बहुत मजबूत होता है। इन्हें अक्सर अप्रत्याशित धन लाभ होता है और ये अपनी मेहनत से भी अपार संपत्ति अर्जित करते हैं। हालांकि इन्हें थोड़ा भौतिकवादी माना जा सकता है, फिर भी ये उदार होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा होता है और इन्हें समाज में मान सम्मान भी खूब मिलता है। शुभ नाम। चूंकि हिंदू धर्म में नाम दिवस का कोई सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इस दिन के लिए कुछ शुभ नाम और उनके संभावित प्रभाव बता सकते हैं। जिन बच्चों का जन्म इस दिन होता है उनके लिए ये नाम शुभ माने जा सकते हैं। कब और कैसे करें? धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में अपनी पसंद की धातु की वस्तुएं खरीदें। सोने और चांदी को सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि वे स्थायी धन का प्रतीक हैं। बर्तन खरीदना भी शुभ होता है क्योंकि वे घर में अन्न और भोजन की प्रचुरता का प्रतीक है। एक नई झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह घर से दरिद्रता को दूर करती है। प्रतीकवाद। धातुएं धन की स्थिरता का प्रतीक हैं। झाड़ू घर से नकारात्मक ऊर्जा और गरीबी को दूर करने का प्रतीक है।
नए बर्तन यह दर्शाते हैं कि घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। बाद में क्या करें? इन नई वस्तुओं को घर लाते समय सम्मानपूर्वक लाएं, उन्हें सीधे अपने पूजा स्थल के पास रखें और पूजा के बाद उनका उपयोग शुरू करें। कुबेर कलश स्थापना। लक्ष्य: भगवान कुबेर से धन की स्थिरता और वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री: एक छोटा मिट्टी या धातु का कलश, साबुत चावल, हल्दी की गांठ, सिक्का, चांदी का हो तो और भी शुभ, कमलगट्टा, धनिया के बीज। कब और कैसे करें? पूजा के समय एक छोटे कलश में थोड़े से साबुत चावल भरें, उसके ऊपर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, कुछ कमलगट्टे और धनिया के बीज रखें। इस कलश को कुबेर यंत्र यदि हो के सामने या अपने पूजा स्थान के उत्तर दिशा में रखें। कुबेर मंत्र का जाप करें। बाद में क्या करें? इस कलश को पूरी दीपावली के दौरान वहीं रखा रहने दें। दीपावली के बाद चावल को पक्षियों को खिला दें, सिक्का अपने तिजोरी में रखें और कमलगट्टे व धनिया के बीज को किसी गमले में बो दें। पाक परंपराएं। धनतेरस के दिन सात्विक और पवित्र भोजन बनाने का विशेष महत्व है। नैवेद्य, भोग: देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं को खीर, बताशे, मीठे चावल और फल अर्पित किए जाते हैं। कई घरों में आटे और गुड़ से बनी विशेष मिठाई भी बनाई जाती है। मिठाइयाँ: इस दिन पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू और जलेबी बनाई जाती हैं। अनाज आधारित भोजन: कई घरों में चावल और दाल से बनी धनतेरस खिचड़ी बनाई जाती है, जो सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। मिस्टीरियस कारण: धनतेरस पर घर में खाली बर्तन रखना अभाव और खालीपन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह घर में कमी और संसाधनों की कमी को आमंत्रित करता है। परिणाम: आपके घर में कभी भी प्रचुरता नहीं आएगी और आपको हमेशा संसाधनों की कमी का अनुभव हो सकता है। इसीलिए नए बर्तन खरीदने के बाद उन्हें तुरंत चावल या अनाज से भर देना चाहिए। 9. दक्षिण दिशा में नई यात्रा या शुभ कार्य की शुरुआत। मिस्टीरियस कारण: दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यद्यपि हम इस दिन यम दीपक जलाते हैं, लेकिन किसी भी नए शुभ कार्य या लंबी यात्रा की शुरुआत इस दिशा की ओर मुंह करके करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह बाधाएं या नकारात्मक परिणाम ला सकता है। परिणाम: आपके नए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, यात्रा असफल हो सकती है या आपको अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। द मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन। मिस्टीरियस कारण: धनतेरस एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दिन है। इस दिन मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन करना अशुद्ध माना जाता है और यह देवी देवताओं का अपमान करता है। यह आपके शरीर और मन को दूषित करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। परिणाम: देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। यह आर्थिक और मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, यह थे 17 अक्टूबर 2022 यानी धनतेरस के दिन के रहस्य, परंपराएं और प्रतिबंध। याद रखिए, यह दिन हमें केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सद्भाव और एक पवित्र जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। इन नियमों का पालन करें और देखें कैसे आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां दस्तक देती है। अगली बार तक अपने आसपास के रहस्यों को तलाशते रहिए और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरिए। नमस्कार और शुभ धनतेरस. Dette er en klassiker, som storaborren sjældent kan modstå. Jigger i naturlige farver er også svært effektive til høstens aberfiske.